देखियो on first sheet I will just briefly explain the course structure. In semester 1 there will be two main core paper. One is your mathematical methods for economics and the other paper is introductory micro. Economics paper will continue throughout the semester. So in the first semester introductory micro, semester 2 will be introductory macro. So your first year will be basically introduction of micro as well as introduction of macro. Second year third semester will be intermediate micro 1, intermediate macro 1. So third semester you have to deal with micro and macro both. In fourth semester also there will be micro and macro. Intermediate micro second, intermediate macro second. So first year is introductory, micro and macro separately, and in second year there will be micro and macro together, and the level will be not introductory, it will be intermediate, and in the final year again you will have to deal with micro and macro, but that paper will become an optional paper. You may choose not to read it. So in the first year it is compulsory, you have to choose. In the second year also it is compulsory, it is in core paper, but in third year it will become an optional. That means first year is introduction, second year is intermediate, and third year is advanced. So three different level, three different year. So introduction, then intermediate, and then it will be a advanced part. Now a slight change has been, so if you are aware with the course which is starting for this academic year 1920, effective for this, minor changes are there in the syllabus. Minor changes, I can say 10 to 15% content has been revised, but वो भी formal नहीं है. But if you go by the content, it is mathematical methods for economics, mathematical methods for economics, then introductory micro. So this is your semester 1. In semester 2 it will be mathematical method for economics second and introductory macro. So that will be semester 2. So your first year is basically these 4 core paper. In third semester it is intermediate micro 1, intermediate macro 1, and statistical method for economics. So third semester core paper will be 3. Then in fourth semester it will be intermediate micro second, intermediate macro second, and introductory econometrics. So 3 in semester 4. So 2 in semester 1 and semester 2, and 3 each in semester 3 and semester 4. And after that it will become some optional paper. So here basically it is a core courses. So first year is introduction, second year is intermediate, and third year will become basically advanced part. Now basically we are writing introductory micro content. So on first page write down introductory micro. Introductory micro, and there are 6 unit. Unit 1 is introduction. First one is introduction to microeconomics. Unit 2 will be demand and supply. Basically it is market mechanism, how market works. We will be learning how market works, why market is efficient, how prices are determined in the market forces, and there will be some application part. Unit number 3 will be dealing with consumer theory, and consumer theory is all about household. Consumer theory is all about household. Household is mainly consumer theory. Unit number 4, unit number 5, and last unit
Last 3 unit is basically for market. Last 3 unit is basically for the market. So last 3 unit will be for market, and in unit number 4 it is a theory of firm and competitive market. Theory of firm and competitive market. That means in the unit number 4 you are basically dealing with perfect competition market. In unit number 5 it will be imperfect competition. Imperfect competition. Imperfect mainly in semester 1 only you are reading here only monopoly. Although imperfection include monopolistic also, it also include oligopoly also. But in semester 1 it is only monopoly. In this heading you have to refer only monopoly. And last unit is also market, but that will be input market. ठीक है. Now weightage is not assigned, मतलब किसी यूनिट का यहाँ पे डिफाइंड वेटेज नहीं होता कि फ्रॉम दिस यूनिट नंबर 3 you will be having this much of question. As per the content there will be a weightage, and the highest content is basically in unit number 2, which will include chapter number 4, chapter number 5, 6, 7 and 8. 5 chapters. And all those 5 chapters you have to refer from your reference book ManQ. ठीक है. चैप्टर नंबर 4, 5, 6, 7 and 8. For household it will be chapter number 21, again from ManQ. For unit number 4 it will be chapter number 13 and 14, again from ManQ. Chapter number 13 and chapter number 14. For imperfect that is monopoly, chapter number 15, and input market chapter number 18. So 5 chapter here, 6, 7, 8, 9, 10. Introduction used to be earlier from the ManQ itself, but अभी कोई clarity नहीं है कि वो content कहाँ से पढ़ना है. Although new syllabus में एक नई book ऐड की गई है. As per the new syllabus, apart from ManQ, Winston, बट अभी ये स्पेसिफाई नहीं हो रहा है कि उस विंस्टन से कौन से चैप्टर पढ़ने हैं आपको. विंस्टन से कौन से चैप्टर पढ़ने वो अभी स्पेसिफाइड नहीं है. सो दिस विल बी बेसिकली अ न्यू रेफरेंस, न्यू एडिशन यू कैन से फॉर योर एकेडमिक ईयर. ठीक है. तो ManQ यूजुअली पढ़ना है, कॉमन रीडिंग वही रहेगी, वो लास्ट ईयर से सेम है. दिस विल बी अ न्यू रीडिंग फॉर यू. So you can write here ManQ mostly, and then Winston. ठीक है. रेफरेंस बुक एक्चुअल में 2 है, बट विंस्टन का कंटेंट बहुत कम होगा और ManQ का कंटेंट ज़्यादा है. 85%, 90% is basically ManQ. Only 10% will be from Winston. The addition is basically as per the content. The addition I find it in unit number 2. Although 4, 5, 6, 7 और 8 लिखे गए, एक चैप्टर माइट भी ऐड हो सकता है. वो डिटेल जब रीडिंग लिस्ट आएगी डी स्कूल की उसमें इंक्लूडेड होगा. ये यूनिवर्सिटी का कंटेंट है. अभी यूनिवर्सिटी ने सबके लिए जो डिज़ाइन किया है, अब डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंगली जब वो डिज़ाइन हो जाएगा, मतलब डी स्कूल जब उसको डिफाइन करेगा कि ये चैप्टर है और इस बुक से आपको रेफ़र करने, तो वो फाइनल हो जाएगा. अभी स्टिल यू कैन से इट इज़ अ टेंटेटिव और प्रोविजनल. मतलब जो नई वाली रीडिंग है वो अभी आप कह सकते हैं स्टिल अभी वो प्रोविजनल है, जब तक वो डी स्कूल के साइट पे अपडेट नहीं हो जाता या इसके चैप्टर स्पेसिफाई नहीं हो जाते. आई कैन जस्ट मार्क हियर यूनिट 2, व्हाट यू हैव रिटन इज सप्लाई एंड डिमांड. इन दैट यूनिट वी हैव टू स्टडी हाउ मार्केट वर्क्स, मार्केट एंड वेलफेयर, देन मार्केट एंड कॉम्पिटिशन, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. यहाँ तक का कंटेंट पहले भी था. जो न्यू दिख रहा है वो ये, विच इज़ एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, कंपेरिजन ऑफ इक्विलिब्रियम विद एंड विदाउट ट्रेड, द विनर्स एंड लूजर्स फ्रॉम ट्रेड,
effect of tariff and quota, benefits of international trade, and some arguments for restricting trade. So you can say this part is new, rest is same. ठीक है, पूरे सिलेबस में प्रीवियस ईयर से और इस साल में जो डिफरेंस है वो इस सेक्शन का है. सो फॉर दैट पर्पस एट द मैक्सिमम वन चैप्टर विल बी एडेड, एंड दैट चैप्टर ऑब्वियसली इट इज आइदर फ्रॉम मैनक्यू और फ्रॉम द विंस्टन. ठीक है, सो विल स्टार्ट बेसिकली विद दिस यूनिट नंबर 2. सेकेंड यूनिट से स्टार्ट कीजिएगा. सो फ्रॉम नेक्स्ट पेज. ठीक है, इस जगह पे जो भी इंफॉर्मेशन है वैसे छोड़ देना. प्लस रिमेंबर द पेपर पैटर्न विल बी numerical and application based question. The nature of question will be numerical and application based question. So mainly it will be numerical and mainly it will be application based question. ठीक है, that will become clear. वो भी पहली क्लास में क्लियर हो जाएगा numerical और application based question का मतलब क्या है. So from next page write down unit number 2. So unit 2 is demand and supply. Again write down here chapter number 4, 5, 6, 7 and 8. These 5 chapters from ManQ. ठीक है ना, और लाइकलीहुड एक चैप्टर और ऐड हो जाएगा फाइनली. जो वो एडिशन मैंने कहा वो भी ManQ से ही होने के चांस है, वो चैप्टर नंबर 9 होगा, बिकॉज चैप्टर नंबर 9 इज बेसिकली डीलिंग विद दैट. बट अभी तक जो कंटेंट गिवन है उसके अकॉर्डिंग लीजिए. चैप्टर नंबर 4, 5, 6, 7 एंड 8. डोंट मार्क एनी हेडिंग फॉर एनी पर्टिकुलर चैप्टर. मतलब क्लास वैसे नहीं चल रही कि आप चैप्टर 4 पढ़ रहे हैं फिर चैप्टर 5 होगा फिर चैप्टर 6 होगा. वी आर बेसिकली स्टडिंग यूनिट नंबर 2, एंड इन दैट यूनिट स्टार्ट विद द कंसेप्ट ऑफ elasticity of demand. Basically we have to explain the application of elasticity, but I will first of all introduce the concept of elasticity. So when you use the word elasticity in micro, elasticity word means responsiveness. So it is responsiveness of demand. But why demand will respond? Demand will respond due to change in price. It may respond due to change in income. It may respond due to change in price of related commodity. It may respond due to change in taste and preference and so on. उसे मैं इक्वेशन में लिख रहा हूँ अभी. Quantity demanded of X is a function of price of that commodity. It is a function of income of consumer. It is a function of price of a related commodity like Y. It may be a function of other factors, but for elasticity ये 3 factor important है. Now if price of a commodity will change, then there will be change in demand for that commodity. How much will be that change? X का price अगर change होता है तो X के demand में change आएगा, but how much? Not direction. I am saying how much, magnitude. Suppose price of good X reduces by 1%. Then demand will increase, but by how much percentage? For measuring that you use the concept of elasticity. So when price of the commodity will change, there will be change in demand for that commodity. How much will be that change? To calculate that you use the concept of price elasticity. So how to define price elasticity? What does price elasticity measure? Simple है. Price elasticity will measure what? Response in demand due to change in price keeping all other factors constant. So when you calculate price elasticity, you will change only price holding all other factors constant. Similarly, when income will change, there will be change in demand. But how much is that change? To calculate that, you will use income elasticity. So what does income elasticity measure? Elasticity means response. So income elasticity measure what? Response of demand due to change in income holding other factors. So now what are the factors constant? Price of that commodity and price of the related good. Similarly, when you change price of the related commodity, then also there will be change in demand. So that is also price elasticity.
but it is not price of the same commodity, it is price of some related commodity, therefore you call it cross price elasticity. So if that is cross price elasticity, then this is own price elasticity. अगर वो क्रॉस प्राइस elasticity है तो ये own price elasticity है. Own price elasticity, although it is not written, but it generally remember it is own price elasticity. So what is own price elasticity? It measures response in demand due to change in price of the same commodity, keeping other factors constant. So in that elasticity heading, we have to study price elasticity, we have to study income elasticity also, we have to study cross elasticity, but this is first class is only for price elasticity and its application. So we are studying basically price elasticity. After covering that, then we can move to income elasticity and then cross price elasticity. So now make the first heading, price elasticity of demand. Price elasticity of demand. Price elasticity of demand. कितने स्टूडेंट पहली बार इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं? 12th में जिन्होंने नहीं पढ़ा है, 12th में नहीं पढ़ा है, तो जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो साइकोलॉजिकली अपने दिमाग से ये बात हटा देना कि आपने इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी है, और जिन्होंने पढ़ रखी है वो इस बात को हटा देना कि उन्होंने इकोनॉमिक्स पहले पढ़ रखी है. वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है अनलर्न करना, न्यू लर्न करना तो ईजी है आपके लिए. ठीक है, तो आप उस बात को हटा दें, मतलब कंसीडर ज़ीरो. ठीक है, ज़ीरो से आप बेसिकली स्टार्ट कर रहे हैं. सो आई विल कंसीडर कि आपने इससे पहले इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी हुई है. तो प्राइस इलास्टिसिटी का मतलब क्या हुआ? इलास्टिसिटी मीन्स response. Elasticity means response. So it is response in demand due to change in price. Write down the definition of that term. Price elasticity is price elasticity of demand. Price elasticity of demand is a numerical measure of price elasticity of demand is a numerical measure of degree of responsiveness in quantity demanded, degree of responsiveness in quantity demanded due to change in price of that commodity, due to change in price of that commodity, due to change in price of that commodity, after comma, keeping all other factors constant, keeping all other factors constant, keeping all other factors constant. ठीक है, अब यहाँ देखिएगा, इलास्टिसिटी के लिए सिंबॉलिकली मैंने ई लिखा है, सबस्क्रिप्ट में यहाँ पे लिखने का मतलब है रीड क्या करना है इसको, प्राइस इलास्टिसिटी. सो प्राइस इलास्टिसिटी बेसिकली मेजर्स व्हाट, proportionate change, delta for change in quantity demanded upon proportionate change in price. And to calculate that, you will say change in quantity. How to find percentage change in quantity? Change in quantity upon base quantity into 100, and this is change in price upon price into 100. This 100 will cancel out. So you can write it delta Q by delta P into P upon Q, and just make a habit of writing these two terms in bracket. Delta Q by delta P into P by Q. So price elasticity of demand is delta Q by delta P into P by Q. I will put a minus sign here. लॉजिक अभी क्लियर हो जाएगा कि हम माइनस साइन क्यों लिख रहे हैं. अगर माइनस नहीं लिखेंगे तो याद रखना प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशन होता है, तो आइदर डेल्टा पी और डेल्टा क्यू विल बी नेगेटिव. तो इंटायर टर्म हमेशा नेगेटिव आएगा, बट यू कैन प्रूव दैट इलास्टिसिटी इज नेवर नेगेटिव, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव. नाउ you have to apply this concept now in this form. Minus sign delta q by delta p will be written as dq by dp
जैसे डिफ्रेंशिएट किया dy by dx, व्हाट डज dy by dx मेजर? dy by dx का मतलब क्या हो गया? आपने फंक्शन को डिफ्रेंशिएट किया है with respect to x, keeping all other factors constant. Similarly, when you differentiate q, basically you are differentiating demand function, but we are differentiating demand function with respect to price, keeping all other factors constant. So delta q by delta p is in fact dq by dp into p by q. So price elasticity or demand you can calculate by using this formula, minus dq by dp into p by q, minus dq by dp into p by q. Apply that in that first numerical problem. Just apply this concept to calculate a price elasticity demand. Write this example. Let demand function be q equal to 90 minus 2p. Let demand function be q is equal to 90 minus 2p. मतलब डिमांड का एक इक्वेशन दिया आपको. फाइंड प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड, फाइंड प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड, find price elasticity demand when price is 20. Find price elasticity demand when price is 20. आपको elasticity डिमांड बताना है जब प्राइस 20 है. You have to calculate elasticity demand when price is 20. कैलकुलेट कर लोगे? तो कैलकुलेट इलास्टिसिटी, अभी तक आपने सिर्फ ये फॉर्मूला लिखा है, इस फॉर्मूले को अप्लाई करना है. ये फॉर्मूला यूज़ करने के लिए मुझे dq बाई dp करना है, बट dq बाई dp का मतलब उस डिमांड फंक्शन को क्या करेंगे? डिफ्रेंशिएट कर लीजिएगा. सो व्हेन यू सॉल्व फर्स्ट dq बाई dp, इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए p के रिस्पेक्ट में, तो कॉन्स्टेंट टर्म 90, उसका डेरिवेटिव 0 हो गया, माइनस 2p का डिफ्रेंशिएशन माइनस 2. Now put it in the elasticity equation. Elasticity equation is minus sign first, then dq by dp is minus 2. What is the value of p? Given है 20. But if price is 20, here write it 20, then quantity will be 50. So that will be 4 by 5. Elasticity will be 4 by 5. तो प्राइस इलास्टिसिटी और डिमांड इज 0.8. ठीक है, प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड की वैल्यू 0.8 हो गई. तो गिवन दैट प्रोडक्ट डिमांड फंक्शन वी हैव टू कैलकुलेट इलास्टिसिटी डिमांड. स्टेप क्लियर है? तो फंक्शन अगर बदल जाएगा तो कोई प्रॉब्लम, इससे स्टेप सॉल्व हो जाएगा. अगर फंक्शन डिफरेंट हो गया तो इलास्टिसिटी कैलकुलेट कर लोगे. एग्जाम्पल के लिए बताओ. If I say quantity demanded is equal to 100 upon P, function change किया, Q equal to 100 by P. Find price elasticity demand when price is 10 and when price is 20. अगर प्राइस 10 है तो कितनी इलास्टिसिटी है, और प्राइस 20 है तो कितनी इलास्टिसिटी है, और ये बताना है at which price elasticity is more or less. सेकेंड एग्जाम्पल ये, किस प्राइस पे इलास्टिसिटी कम है या ज़्यादा है? P इक्वल टू 10 पे 1 है, और P इक्वल टू 20 पे सबसे पहला काम क्या होता है? dq बाई dp करना है आपको. ठीक है, सो यू हैव टू डिफ्रेंशिएट दिस. 100 बाई p का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? माइनस 100 बाई p स्क्वायर. इलास्टिसिटी माइनस साइन, देन dq बाई dp, देन p बाई q. सो राइट हियर माइनस साइन, dq बाई dp इज minus 100 by p square into p by q. Clear?
ये P कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ, तो इलास्टिसिटी की वैल्यू हो जाएगी 100 अपॉन P इंटू क्यू। इस फंक्शन में P इंटू क्यू की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, तो इट विल ऑलवेज बी 100 by 100, इट विल ऑलवेज बी 1 वेदर यू कैलकुलेट एट 10 और 20 और 30। इस फंक्शन में इलास्टिसिटी की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, 1 रहेगी, इट इज ऑलवेज 1। इट विल P इंटू क्यू, ये नंबर कितना आएगा, हमेशा 100 ही आएगा, तो इट विल ऑलवेज बी 100 by 100। इसको प्लॉट कर सकते हो आप ग्राफ में, इस डिमांड फंक्शन को P लिखा और यहाँ Q लिखा है, तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा एग्जैक्टली, बिकॉज ऑल रेक्टेंगल्स will have same area and that area will always be equal to what, 100. So at every point elasticity will be 1, हर पॉइंट की इलास्टिसिटी 1 होगी, whether you calculate at 10 or whether you calculate at 20 or any other price। ठीक है, अभी सिर्फ एक पॉइंट आपको याद रखना है कि इलास्टिसिटी कैलकुलेट करने के लिए क्या किया हमने, माइनस डी क्यू बाई डी पी इंटू पी बाई क्यू किया। नाउ सेकेंड बेसिक थिंग, second basic thing is if I write it again, कि अभी कुछ बेसिक पॉइंट्स आप लिख रहे हैं यहाँ पे, इलास्टिसिटी इज डी क्यू बाई डी पी इंटू पी बाई क्यू। अगर आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो फिर तो माइनस साइन लिखना आपके लिए मैंडेटरी है, अगर आप वैसे कंसेप्ट से समझा रहे हो तो माइनस साइन अगर नहीं भी लिखते हैं तो कोई इशू नहीं है उससे। व्हेन यू ड्रॉ द डिमांड कर्व, व्हाट डू यू राइट ऑन एक्सेस, price and quantity. So can you find slope of that line? मैथमेटिकली स्लोप निकालने के लिए क्या करते हैं, tan थीटा ज्योमेट्रिकल मेथड है, परपेंडिकुलर बाय बेस हो गया, परपेंडिकुलर बाय बेस कर दिया, या डिफ्रेंशिएट कर लो dy बाई डी एक्स, वो भी स्लोप आएगा। बट अगर मैं कह रहा हूँ स्लोप dy बाई डी एक्स है, व्हाट इज y एंड व्हाट इज x हियर, पी वाई है, ये वर्टिकल एक्सिस पे है और ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे है, तो स्लोप इज इनफैक्ट dp बाई dq, स्लोप इनफैक्ट dp बाई dq है डिमांड कर्व का। इलास्टिसिटी के फॉर्मूले में क्या लिखा है, ध्यान देना, अभी कॉपी नहीं कीजिएगा, जस्ट इलास्टिसिटी फॉर्मूले में dq बाई dp लिख रहे हैं और स्लोप होता है, दैट मीन्स इन इलास्टिसिटी वी यूज इनवर्स ऑफ स्लोप। So can I write this dq by dp as 1 upon slope of demand curve, लिख सकते हैं, into p by q, ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो जाएगा। अगर डिमांड कर्व स्ट्रेट लाइन है तो इसका स्लोप हर पॉइंट पे सेम रहना है, कांस्टेंट है, स्ट्रेट लाइन का स्लोप एट एवरी पॉइंट विल रिमेन सेम, मतलब लाइन अगर स्ट्रेट है तो स्लोप एट एवरी पॉइंट विल रिमेन सेम। स्लोप सेम मतलब ये नंबर कांस्टेंट हो गया, तो कैन बी से दैट इलास्टिसिटी इज आल्सो सेम, नो यू कांट, इलास्टिसिटी इज नॉट ओनली 1 बाय स्लोप, देयर इज 1 बाय स्लोप इनटू p बाय q। अब जरा ध्यान देना, एज यू मूव डाउनवर्ड व्हाट इज द इफेक्ट ऑन प्राइस, डिक्रीजेस, एट दिस पॉइंट व्हाट इज प्राइस, 0, पुट हियर 0, यहाँ 0 लिख देंगे तो 0 बाई एनी नंबर 0, मतलब इस कॉर्नर पॉइंट पे इलास्टिसिटी या डिमांड 0 है फिर, बिकॉज प्राइस 0 है। तो जब प्राइस 0 हो गया तो वहाँ इलास्टिसिटी भी क्या होगी, 0 होगी। अपवर्ड मूव करने पे क्वांटिटी क्या होती जाएगी, एज यू मूव अप प्राइस विल राइज एंड क्वांटिटी विल, एट दिस पॉइंट हाउ मच इज क्वांटिटी, नाउ पुट इन प्लेस ऑफ क्वांटिटी 0, एनी वैल्यू डिवाइडेड बाई 0, इन्फिनाइट हो गया, तो एट दैट पॉइंट हाउ मच इज इलास्टिसिटी, इन्फिनाइट। तो कैन वी से दैट ऑन अ गिवन स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व द वैल्यू ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी वेरीज बिटवीन 0 एंड, तो अगर कोई वैल्यू 0 और इन्फिनिटी के बीच वेरी कर रहा है तो ये प्रूव कर रहा है कि वो टर्म नेगेटिव नहीं है। अगर वैल्यू 0 टू इन्फिनिटी के बीच वेरी कर रहा है, दैट मीन्स इट इज ऑलवेज positive, elasticity is always positive, elasticity is always positive, and why you added minus sign there,
बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि इलास्टिसिटी की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव है, इलास्टिसिटी कभी नेगेटिव नहीं होगा। नेगेटिव आंसर तभी आएगा जब हम फॉर्मूले में नेगेटिव नहीं लिखते हैं, तो नेगेटिव आंसर आ जाएगा। तो कभी कभी बुक के अंदर गिवन होता है कि इलास्टिसिटी -2, बट कंसेप्ट क्लियर रखना, इलास्टिसिटी कभी नेगेटिव नहीं होगा। अगर -2 लिख रहे हैं इसका मतलब उसने फॉर्मूले में माइनस ऐड नहीं किया है। फॉर्मूले में हमेशा आपको माइनस ऐड करके इलास्टिसिटी कैलकुलेट करनी है, देन ओनली इट विल कम आउट टू बी पॉजिटिव वैल्यू। सो ऑन एनी गिवन स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व द वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी वेरीज बिटवीन 0 to infinity. इट इज 0 here एंड इन्फिनिटी है। एक दो बेसिक पॉइंट है जिसको आपको अभी इस क्लास के अंदर यूज़ करना है, वो बता रहा हूँ। अगर मैंने डिमांड का वर्टिकल बना लिया या डिमांड का हॉरिजॉन्टल बना लिया, तो कहाँ पे इलास्टिसिटी 0 है और कहाँ पे इलास्टिसिटी इनफाइनाइट है, और क्यों? पहला 1 by 1 यहाँ पे क्या हुआ? बिकॉज वर्टिकल लाइन का स्लोप इनफाइनाइट हो जाएगा, तो 1 by इनफाइनाइट वो 0 हो गया। इस पॉइंट पे प्राइस इलास्टिसिटी की वैल्यू 0 है बिकॉज स्लोप इनफाइनाइट है। स्लोप का इलास्टिसिटी के साथ इनवर्स रिलेशन होना है, और हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप 0, तो उसकी इलास्टिसिटी इनफाइनाइट होगी। तो इलास्टिसिटी इज इनफाइनाइट बिकॉज स्लोप ऑफ दैट लाइन इज 0। ये पॉइंट इलास्टिसिटी के रिस्पेक्ट में आपको हमेशा याद रखना है जब तक आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, सिर्फ सेमेस्टर 1 की बात नहीं है। ये बेसिक पॉइंट है, इसको आपको हमेशा याद रखना, बिकॉज इट विल बी यूज इन एनीवेयर। माइक्रो जब तक आप पढ़ते रहोगे, जिस लेवल पे भी ये कंसेप्ट अप्लाई होता रहेगा। तो इलास्टिसिटी का स्लोप के साथ क्या रिलेशन है? इनवर्स। एंड हाउ टू कैलकुलेट इलास्टिसिटी? माइनस dq by dp इंटू p by q। वर्टिकल लाइन की इलास्टिसिटी 0 और हॉरिजॉन्टल लाइन की इलास्टिसिटी इनफाइनाइट है। तो अगर बोला जाए इलास्टिसिटी 0 या इनफाइनाइट है, तो लाइन को आपको वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करना है। एल्स इफ़ यू आर ड्राइंग अ स्ट्रेट लाइन, तो उस पर इलास्टिसिटी की वैल्यू 0 to इन्फिनिटी के बीच वैरी करता है। ठीक है, यहाँ तक का पॉइंट हो गया जो आपको मालूम होना चाहिए इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन योर फर्स्ट एप्लीकेशन। तो विल एक्सप्लेन ओनली वन पार्ट टुडे। स्लोप तो नेगेटिव है, ठीक है। स्लोप हमेशा एब्सोल्यूट नंबर रीड करते हैं, मतलब स्लोप इज बेसिकली द एंगल एट विच दैट लाइन इज टिल्टेड। ठीक है, जिस एंगल पे वो टिल्टेड है, तो स्लोप को आप हमेशा एब्सोल्यूट रीड करना। ठीक है। नाउ एप्लीकेशन नंबर 1, फर्स्ट एप्लीकेशन करना, कॉपी डन। मेक एप्लीकेशन नंबर 1। This is a application of price elasticity, and this application is all about incidence of tax. The word incidence means burden, so basically we are explaining burden of tax. Incidence of tax, that is burden of tax. So we have to explain the burden of tax, and which tax we are referring here. It is called unit tax, also known as specific tax, also called quantity tax. कोई भी वर्ड अगर यूज हो रहा है इसका मतलब एक ही है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, if I say tax is 10 rupees per unit, I said 10 rupees per unit. It can be unit tax or called specific tax or quantity tax. So I said tax is 10 rupees per unit. I am not saying 10%. 10 rupees per unit है, इसका मतलब on every unit 10 rupees का टैक्स इम्पोज किया गया। क्वेश्चन ये बनता है कि इफ टैक्स इज इम्पोज ऑन एनी कमोडिटी देन हु विल बियर द बर्डन?
Who will bear the burden of that tax? The burden of that tax will be on buyer also. The burden of tax will be on seller also. But who will bear the larger burden? And who will have the lesser burden? In which condition complete burden will be on buyer? In which condition complete burden will be on seller? All will depend upon elasticity. It is not simple. Elasticity determine करेगा कि burden buyer पे ज़्यादा होना है या seller पे ज़्यादा होगा. Explain करने के लिए divide this concept into two parts. One is before tax. Suppose there is no tax. So in the absence of tax, how prices are determined? टैक्स अगर नहीं है किसी कमोडिटी पे तो प्राइस डिटरमाइन कैसे होगा? डिमांड सप्लाई के इक्वालिटी से. सो इफ आई गिव यू अ डिमांड इक्वेशन एंड सप्लाई इक्वेशन तो प्राइस बता दोगे. तो मैंने डिमांड का इक्वेशन लिख दिया. डिमांड इज इक्वल टू 90 माइनस 2p एंड सप्लाई इक्वेशन इज 3p. देन व्हाट इज मार्केट प्राइस? Plot it graphically and calculate it. डिमांड फंक्शन प्लॉट करना आता है. इक्वेशन गिवन होगा तो एग्जैक्ट प्लॉट कर दोगे. इस इक्वेशन की प्लॉटिंग क्या होगी? नेगेटिव तो बनना है, इंटरसेप्ट बताना है. प्राइस अगर जीरो होगा तो क्वांटिटी कितनी होगी? तो प्राइस जब ज़ीरो लिखना है तो क्वांटिटी यहाँ 90 लिखिएगा. तो ये कॉर्नर की वैल्यू 90 लिख दी हमने. ठीक है. आगे बताओ जब क्वांटिटी ज़ीरो होगा तो प्राइस क्या होगा? क्यू की जगह ज़ीरो लिखा है. सो व्हेन क्वांटिटी विल बी ज़ीरो देन प्राइस विल बी 45. एक बार पी की वैल्यू ज़ीरो करना क्यू आ जाएगा. क्यू की वैल्यू ज़ीरो पुट करेंगे पी आ जाएगा. बाय मार्किंग दोज 2 पॉइंट्स connect both by straight line. ठीक है. plot now supply curve. Q equal to 3p. So when price is zero, how much is supply? So it will start from origin then, and from origin it will be a straight line, and their intersection will determine the market price. Their intersection is determining the market price. So for market equilibrium, demand is equated to supply. So 90 minus 2p is equal to 3p, and therefore p is equal to. So this price is 18. And how much is quantity? You can substitute that price in any equation. किसी भी इक्वेशन में पुट कर देगा. इक्विलिब्रियम पॉइंट पे डिमांड सप्लाई सेम होता है. So that quantity is 54. Clear? But this is without any tax. ये without any tax है. We have to study what will be the impact after tax. So how tax will be affecting it. तो ध्यान देना प्राइस मार्केट का 18 है. So buyer is paying 18 rupees, seller is receiving 18 rupees. There is no tax. What will happen after tax is that the market price will include that tax. So there will be a difference between the price paid by buyer and the price which will be received by seller, and that difference between these two price will be equal to the size of tax. And what is the size of tax we are considering? 10. तो buyer और seller के प्राइस में 10 रुपीज़ का गैप आ जाएगा. buyer और seller के प्राइस में 10 रुपीज़ का गैप आएगा. बट how to calculate the price which is paid by buyer and how to calculate the price which is received by seller, अब आपको टैक्स का इम्पैक्ट समझ में आना चाहिए. तो ये रफ डिस्क्रिप्शन है, क्लियर है. यहाँ भी टैक्स की बात नहीं हुई है. नाउ व्हेन यू इम्पोज टैक्स, आई विल एक्सप्लेन बेसिकली आफ्टर टैक्स पार्ट. क्लियर है यहाँ तक का स्टेप? नाउ रिमेंबर, टैक्स कैन बी इम्पोज आइदर ऑन सेलर और इट कैन बी इम्पोज ऑन बायर. इट कैन बी इम्पोज ऑन सेलर और इट कैन बी इम्पोज ऑन बायर. एक पॉइंट देख लो जरा. अगेन ये रफ डिस्क्रिप्शन, इसको जरा देख के बताना. सपोज इफ आई ड्रॉ दिस सप्लाई कर्व, जो लाइन अभी आपने बनाई थी, इसका इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं. व्हाट डज दिस लाइन सिग्निफाई? सप्लाई कर्व है ये.
तो सप्लाई का बेसिकली एक्सप्लेन व्हाट है, रिलेशन बिटवीन क्वांटिटी एंड प्राइस। तो अगर मैंने यहाँ नंबर लेटर से 1 लिखा और यहाँ की वैल्यू अगर 3 लिखी है, इसका मतलब क्या हुआ, सेलर इज रेडी टू सेल 1 यूनिट एट व्हाट प्राइस, 3। इलास्टिसिटी की बात छोड़ दो, ओरिजिन से निकल रहा है तो उसकी इलास्टिसिटी 1 हो जाएगी। हाँ, at 1 if I have written there 3, it means seller is ready to sell 1 unit at a price 3. Now if there is a tax and that tax is rupees 10 on every unit, इसका मतलब है if you sell that unit you have to pay a tax of 10 rupees। तो अब बताओ बिना किसी टैक्स के अगर सेलर 1 यूनिट 3 रुपये में बेचने को रेडी था, अब गवर्नमेंट कह रही है कि इफ़ यू सेल दिस यूनिट यू हैव टू पे अ टैक्स ऑफ 10 रुपीज़, सो एट व्हाट प्राइस सेलर विल बी विलिंग टू सेल दैट, 13। तो 1 के करस्पॉन्डिंगली फिर 13 वाला पॉइंट आना चाहिए और नया सप्लाई का 13 वाले पॉइंट से क्रॉस करना चाहिए था। सो व्हेन टैक्स विल बी इम्पोज द सप्लाई का विल शिफ्ट आफ्टर टैक्स, और कितने का गैप आया, 10 का। तो जितना टैक्स होगा उतने से सप्लाई का शिफ्ट हो जाएगा, जितने का टैक्स होगा उतने से सप्लाई का शिफ्ट कीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है 5 का टैक्स है तो 5 का गैप क्रिएट किया, क्वेश्चन कह रहा है 10 का टैक्स है तो 10, तो जितने का टैक्स होगा उतने से सप्लाई का क्या होना है, शिफ्ट होना है। बट डोंट फॉरगेट मार्केट प्राइस आर डिटरमाइन नॉट ओनली बाय सेलर, नाइदर इट इज डिटरमाइन ओनली बाय द बायर, द मार्केट प्राइस आर डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेज, दैट इज डिमांड एंड सप्लाई इंटरसेक्शन। तो प्राइस का डिटर्मिनेशन होगा डिमांड सप्लाई के इंटरसेक्शन से। अब मैं इस कंसेप्ट को फॉर्मल डायग्राम में यहाँ प्रेजेंट कर रहा हूँ, मार्किंग की ज़रूरत नहीं है, ये लाइन आपने ऐसे ड्रॉ कर रखा था, सप्लाई का और डिमांड का, दिस वाज द मार्केट प्राइस, ये 18 कैलकुलेटेड था, क्लियर है। अब टैक्स अगर इम्पोज होगा तो बताना क्या इफेक्ट हुआ, शिफ्ट हो गया कितने से, तो मैंने सप्लाई का 10 से शिफ्ट कर दिया। पैरेलल क्यों शिफ्ट हो रहा है, हर यूनिट पे 10 रुपये का टैक्स है तो हर प्राइस पे वो 10 से शिफ्ट हो जाएगा। सो इट इज शिफ्टिंग पैरेलल। सो इफ अर्लियर दिस वाज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम इज नाउ दिस, सो दिस इज ए मार्केट प्राइस एंड हाउ मच इज टैक्स, 10 is basically this gap. तो can we say that increase in price is less than the size of tax? डायग्राम पे ध्यान दीजिएगा। Can we say that increase in price is less than the size of tax? प्राइस इंक्रीज तो यहाँ से काउंट करेंगे ना, तो प्राइस का इंक्रीज तो सिर्फ ये डिस्टेंस होगा, बट टैक्स वाज मोर देन दैट। तो अगर ये नंबर आपने 18 लिखा हुआ है तो क्या ऊपर वाली वैल्यू ये 28 होगी, नहीं हो सकती है, क्योंकि 10 का गैप तो ये आ रहा है, क्लियर है। प्राइस का इंक्रीज टैक्स के साइज के बराबर नहीं होता, अगर टैक्स के साइज के बराबर हो जाए तो सारा बर्डन बायर के ऊपर चला गया फिर तो, बट सारा बर्डन बायर के ऊपर। दिस प्राइस विच इज द मार्केट प्राइस विल बी पेड बाय द बायर, आपको ये कैलकुलेट करना भी एग्जैक्टली, ये प्राइस बायर ने पे किया, बट बायर ने जो प्राइस पे कर रखा है उसमें टैक्स इंक्लूडेड है। आप कोई प्रोडक्ट अगर बाई करते हो तो प्रोडक्ट हमने बाई किया तो उस पर लिखा हुआ है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, सो व्हाट यू आर पेइंग इज बेसिकली इंक्लूडिंग ऑल, but you don't pay tax to the seller, you pay tax to the government, but it will go to government through seller, that is why it is called indirect tax, indirectly वो जा रहा है। तो जो प्राइस बायर ने पे किया उसमें टैक्स इंक्लूडेड है, एंड हाउ मच इज द टैक्स, वो गैप है। तो बायर ने जो प्राइस पे किया वो ये वैल्यू है, ये जो गैप आ गया वो कहाँ चला गया, गवर्नमेंट के पास। सपोज आई से दिस प्राइस इज 24, तो 24 रुपीज़ के प्राइस में कितने का टैक्स था, 10 का टैक्स था, तो 10 रुपीज़ कहाँ गए, गवर्नमेंट के पास। सो सेलर इज रिसीविंग और कीपिंग हाउ मच, सो प्राइस रिसीव्ड बाय सेलर विल फॉल, प्राइस पेड बाय बायर विल इंक्रीज, एंड हाउ मच इज द गैप बिटवीन प्राइस पेड बाय बायर एंड प्राइस रिसीव्ड बाय सेलर, 10, एंड दैट 10 इज व्हाट, टैक्स साइज। तो बताओ बायर के ऊपर कितना बर्डन गया और सेलर के ऊपर कितना बर्डन हुआ। ये 6 रुपये जो हाई प्राइस पे कर रहा है, इट विल बी द बर्डन ऑन बायर एंड दिस लोअर वन इज बर्डन ऑन सेलर, एंड बोथ बर्डन इज इक्वल टू 10 रुपीज़ पर यूनिट।
10 रुपीज़ पर यूनिट का बर्डन दोनों पे ऊपर हो गया। तो किस पे बर्डन ज़्यादा होगा और किसके बर्डन कम होगा? बट ये तो मैंने अपनी तरफ से आर्बिट्रेरी नंबर लिखा है अभी, ये तो आप कैलकुलेट करोगे अभी न्यूमेरिकल में। ये नंबर तो मैंने आर्बिट्रेरी लिख दिया ना कि 24 लिख दिया वहाँ पे। नाउ हु विल bear द लार्जर बर्डन और लेस बर्डन, दैट डिपेंड्स अपॉन इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई एंड दैट ऑल्सो डिपेंड अपॉन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और जो मैं लिख रहा हूँ उसको कॉपी कर लीजिएगा। बायस बर्डन अपॉन सेलर्स बर्डन is equal to elasticity of supply by elasticity of demand. The burden on buyer and the burden on seller is equal to elasticity of supply and elasticity of demand. Burden on buyer and burden on seller, they will share burden in what proportion? In the proportion of elasticity of supply and elasticity of demand. ठीक है, इसको प्रूव नहीं करना, इस रिलेशन को एक्सप्लेन करेंगे बस। The burden on buyer and the burden on seller will depend upon elasticity of supply and elasticity of demand. इनफैक्ट यहाँ से 4 रिलेशन से फॉलो होते हैं। बायर के बर्डन का इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई से क्या रिलेशन है? बोथ न्यूमरेटर डायरेक्ट। इट मीन्स when elasticity of supply will increase, burden on buyer will increase. When elasticity of supply will decrease, burden on buyer will decrease. Similarly, seller's burden varies directly with elasticity of demand and buyer's burden का elasticity demand से क्या रिलेशन होगा? इनवर्स होगा। अब कुछ पॉइंट जो मैं कह रहा हूँ उसके अकॉर्डिंगली बताना। greater will be elasticity of supply, greater will be burden on buyer. Less is elasticity of supply, less is burden on buyer. Zero is elasticity of supply, zero is elasticity of supply, zero will be burden on buyer. So when there is zero burden on buyer, that means full burden on. तो अब अगर क्वेश्चन में कहता है कि in which condition complete burden will be on seller, तो क्या बोलिएगा? There will be complete burden on seller if elasticity of supply is zero. Similarly, greater is elasticity of demand, greater burden on seller. Less elasticity of demand, less burden. Zero elasticity of demand, zero burden on seller. So full burden on buyer. So when buyer will have complete burden, when elasticity of demand is zero. So full burden will be on buyer or seller only when either elasticity of supply or elasticity of demand is zero. अब आप ये बताओ, जब elasticity zero होता है तो डिमांड का कैसा बनाते हैं? इलास्टिसिटी जब जीरो होता है तो डिमांड का कैसा बनाया था? वर्टिकल बनाया था। बट यहाँ हमने वर्टिकल नहीं बनाया है। दैट मीन्स वी हैव नॉट टेकन इलास्टिसिटी एज। तो अगर जब आप इलास्टिसिटी जीरो नहीं ले रहे हो तो बर्डन तो दोनों के ऊपर रहेगा। कब कंप्लीट बर्डन बाहर पे होता? जब हमने डिमांड का क्या बना लिया होता? वर्टिकल बना लेंगे। तो वो एक्सट्रीम कंडीशन है। देयर कैन बी कंप्लीट बर्डन ऑन बायर, देयर कैन बी कंप्लीट बर्डन ऑन सेलर, बट दैट विल बी in the extreme condition when either elasticity of supply or elasticity demand is zero. But when demand and supply will be perfectly inelastic, then the curve will be straight line, vertical line होती वो। तो जब तक हमने जीरो और इन्फिनिट नहीं लिया है तो बर्डन बायर और सेलर दोनों पे रहेगा, बर्डन बायर और सेलर दोनों के ऊपर रहेगा। यहाँ तक का पॉइंट क्लियर है? बर्डन कंप्लीटली बायर पे कब जाएगा या सेलर पे कब जाएगा? जब इलास्टिसिटी जीरो हो जाएगी। अब आप सिर्फ ये बताओ, क्या ये आप नंबर कैलकुलेट कर सकते हो? क्योंकि क्वेश्चन मैंने कहा 2 तरीके का होगा, एप्लीकेशन एंड न्यूमेरिकल। सो कैन यू कैलकुलेट इट एग्जैक्टली? ये जो नंबर मैंने 24 अपनी तरफ से लिखा है और नीचे की जो वैल्यू लिखी है, क्या इस नंबर को आप एग्जैक्टली कैलकुलेट कर लोगे? हाँ, जो प्राइस एक प्रॉब्लम करना, रीडिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाले कर लो। एक ये कॉपी कर लिया, डायग्राम डॉक्यूमेंट कर लिया। मैं 1-2 क्वेश्चन न्यूमेरिकल वाले बता दे रहा हूँ। एक क्वेश्चन आप ट्राई कर लीजिए यहाँ पे। टैक्स का साइज, टैक्स तो गिवन होगा। ये गैप, जैसे ये 10 बनाया मान लिया था तो हमने ये गैप 10 मार्क किया यहाँ पे, तो वैसे ये गैप यहाँ पे 10 मार्क कर रहा है।
बट ये जो 2 पॉइंट आ रहे हैं, ये कौन से 2 पॉइंट का गैप हो गया? ये प्राइस फॉर बायर है एंड दिस इज द प्राइस फॉर सेलर। तो ये जो डिफरेंस है दोनों के प्राइस के बीच, वो किसके बराबर है? टैक्स साइज के बराबर है। बट ये क्वेश्चन में गिवन होगा, मैं एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहा हूँ, उससे वो पॉइंट क्लियर हो जाएगा। जो सर वो डिफरेंस आ रहा है जो सप्लाई करते हैं वो क्या होगा? जो डिफरेंस आ रहा है वो टैक्स साइज है। नहीं ऐसे में हॉरिजॉन्टल डिफरेंस का कोई मतलब नहीं है, वर्टिकल डिफरेंस देखिएगा, ठीक है। सर फर्स्ट ग्राफ में सर वो जो प्राइस हमने 3 लिया है, पर वो तो सर सिर्फ सेलर डिसाइड कर रहा है। हमने एग्जांपल के लिए बोला है, हमने ये नहीं कहा कि मार्केट का प्राइस 3 है। आप जो कह रहे हो वो एक्चुअल में क्या है, एक्सप्लेन करने के लिए बोला है कि जो सप्लाई का मान लो कोई भी हमने बना रखा, 3 की जगह 2 लिख दिया होता तो उसका मतलब क्या होता कि सेलर इज रेडी टू सेल दैट 1 यूनिट एट अ प्राइस ऑफ 2। सप्लाई का सिंपली एक्सप्लेन द रिलेशनशिप between price and quantity supplied by the seller. Seller does not determine the price, buyer also does not determine the price. Therefore when you say market price, then market price is always determined by the intersection. Without tax this was the price, after tax this is the price. Solve one question. प्रॉब्लम लिखेंगे, ये पेज नंबर 67 पे होगा, जो बुकलेट यहाँ से मिलेगा उसमें। ऑन पेज नंबर 67 क्वेश्चन नंबर 2B। क्वेश्चन से दैट डिमांड फंक्शन फॉर कॉर्नफ्लेक्स इज 2000 minus 5p। डिमांड इक्वेशन इज गिवन एंड सप्लाई इक्वेशन minus 1500 plus 45p, supply equation given है। there is a tax and size of tax is rupees 15 per unit on buyer। tax is rupees 15 per unit on buyer। 15 रुपीज़ पर यूनिट का टैक्स इम्पोज किया गया। क्वेश्चन में लिखा गया कि इट इज़ प्लेस्ड ऑन बायर, बट वो डिफरेंस क्लियर हो जाएगा वैन क्वेश्चन के अंदर बायर भी लिखा हो सकता है, क्वेश्चन में सेलर भी लिखा हो सकता है, बट आपका आंसर दोनों में सेम ही आएगा। सॉल्व करने के तरीके में थोड़ा सा फ़र्क होगा, बट आई विल एक्सप्लेन दैट। यू हैव टू कैलकुलेट बेसिकली demand function given, supply function given, solve for equivalent price and quantity if the tax of 15 is placed on the buyer so that the new demand function, let us say अगर ये given नहीं भी होता आपके पास तो क्या करना है वो मैं बता रहा हूँ आपको। दो पार्ट में डिवाइड कर लो इस क्वेश्चन को। एक सॉल्व करना बिफोर टैक्स, टैक्स से पहले प्राइस क्या था, सिंपल है। टैक्स से पहले क्या करेंगे, डिमांड को सप्लाई से इक्वेट कर दिया। सो 2000 minus 5p equal to minus 1500 plus 45p। यहाँ से p की वैल्यू सॉल्व कर दी 70 एंड क्वांटिटी 1650, ठीक है। नाउ सॉल्व आफ्टर टैक्स। अब जरा ध्यान देना, आप टैक्स के बाद जब सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन में कहा गया कि टैक्स हैज़ बीन इम्पोज ऑन बायर। सो व्हेन यू इम्पोज टैक्स ऑन बायर, देन इन दैट कंडीशन यू हैव टू राइट न्यू डिमांड फंक्शन। यू हैव टू राइट न्यू डिमांड फंक्शन, मतलब यू हैव टू राइट न्यू डिमांड इक्वेशन। टैक्स लगने से किसके लिए प्राइस बढ़ा था, बायर के लिए या सेलर के लिए? ग्राफ के अंदर टैक्स जब इम्पोज किया है तो बायर हैज़ टू पे मोर, तभी तो बर्डन बायर के ऊपर जाता है, and seller will get less, that is why burden on seller also, but here tax has been imposed on
देयरफॉर आई एम राइटिंग न्यू डिमांड इक्वेशन. अगर क्वेश्चन में लिखा होता है टैक्स इज ऑन, देन आई विल राइट न्यू सप्लाई इक्वेशन. बट हाउ टू राइट इट? व्हाट वाज द ओरिजिनल डिमांड इक्वेशन? 2000 माइनस 5 P. अगर टैक्स बाहर के ऊपर है तो इस प्राइस में टैक्स को ऐड कर दीजिएगा. ध्यान से देखना कैसे किया है. मैंने 5P प्लस 15 नहीं लिखा है. 5P की जगह आपको बेसिकली उसके कोएफिशिएंट जो भी हैं उसको रखेगा. 5P प्लस 15, दिस इज योर न्यू डिमांड इक्वेशन. ये नहीं कह रहे हैं कि कंप्लीट बर्डन बाहर पे जाएगा, वो तो हम कैलकुलेट करेंगे अभी. दिस इज द न्यू डिमांड फंक्शन. देन फाइंड आउट मार्केट इक्विलिब्रियम अगेन. Calculate market equilibrium again. So for market equilibrium again you will equate demand with supply. But which demand? New demand value. तो new demand की वैल्यू कितनी है? For new demand it is 2000 minus 5 P plus 15 and supply is minus 1500 plus 45 P. दोबारा से P की वैल्यू कैलकुलेट करके बताना क्या आ रहा है. सिक्सटी 68.5 करेक्ट. 68.5. ये किसका प्राइस आया, बाहर का या सेलर का? क्वेश्चन में पीबी और पीएस नहीं लिखा है, वो यू हैव टू इंटरप्रेट. दिस इज द प्राइस फॉर बायर और फॉर सेलर. व्हाट वाज प्राइस विदाउट टैक्स? 70 एंड दिस इज लेस देन दैट. तो सेलर के लिए प्राइस घटता है और बायर के लिए प्राइस, तो अगर लोअर वैल्यू आएगी तो किसकी है, वो सेलर की है. सो दिस इज प्राइस फॉर सेलर. एंड यू नो दैट द difference between price for buyer and seller must be equal to what? Tax size. And how much is tax size? How much is tax size? 15 का impose कर रखा है. So you know this number PS, you know the size of tax, so you know the price paid by buyer. So what is the price paid by buyer? Price received by seller 68.5 plus 15, 83.5. So in this question who bears larger burden? Buyer is bearing the larger burden. ठीक है. और टैक्स के बाद की क्वांटिटी निकल जाएगी. टैक्स से पहले क्वांटिटी कितनी है? 1650. कैसे निकाला था? आपने पी की वैल्यू सप्लाई डिमांड में पुट किया होगा, वैसे ही यहाँ भी पुट करेंगे, पर थोड़ा ध्यान से करना क्योंकि यहाँ दो डिफरेंट प्राइस आ रहे हैं, एक बायर का और एक सेलर का. प्राइसेस डिफरेंट होंगे बट दोनों की क्वांटिटी क्या रहेगी? सेम होगी. मार्केट इक्विलिब्रियम क्वांटिटी विल रिमेन सेम. तो यहाँ तक का स्टेप क्लियर है? पहले बताना सेलर प्राइस. सर ये पता कैसे चल रहा है कौन सा ब्रांड है? अगर वैल्यू लोअर आएगी तो किसका प्राइस है, और अगर वैल्यू हायर आएगी तो बायर का प्राइस होगा, बिकॉज बायर हैज़ टू पे मोर आफ्टर टैक्स एंड सेलर रिसीव्स लेस आफ्टर टैक्स. क्लियर? बायर प्राइस अगर हायर आ रहा है तो बायर का है और कम आ रहा है तो सेलर का प्राइस है. अप्लाई इन वन मोर क्वेश्चन. अब ये मैंने सॉल्व किया था, अब आप इसको खुद सॉल्व कर लीजिएगा. दिस इज क्वेश्चन इन 2015, 7th क्वेश्चन, सेकेंड पार्ट. ठीक है. 2015 का क्वेश्चन है ऑन पेज नंबर 56. Demand equation is given as 2P minus 100. Sorry, supply equation है ये. Quantity supplied is 2P minus 100 and quantity demanded is 200 minus P. And tax size is again 15 per unit on buyer. Given information ये.
supply equation 2p minus 100, demand is 200 minus p. Solve for equivalent price and quantity. Suppose a tax of 15 is imposed on buyer. Calculate tax revenue and deadweight loss. तो अभी आपने डेडवेट लॉस कंसेप्ट नहीं किया, वो इसी कंटेंट में बाद में आ जाएगा, बट अभी आपसे फर्स्ट पार्ट और सेकंड का टैक्स रेवेन्यू तक बताना. टैक्स से पहले का प्राइस क्वांटिटी, टैक्स के बाद का प्राइस क्वांटिटी बताइएगा, और फिर गवर्नमेंट का रेवेन्यू. बिफोर टैक्स quantity demanded equal to quantity supplied. 200 minus p is equal to 2p minus 100. प्राइस कितना आया? 100. क्वांटिटी 100. आफ्टर टैक्स क्या करोगे? यू राइट न्यू डिमांड फंक्शन. एंड हाउ टू राइट? बोलिए. 200 माइनस इस p में 15 ऐड कर दिया. आफ्टर दैट अगेन इक्वेट इट. सो राइट डिमांड इक्वल टू सप्लाई. सो 200 माइनस p प्लस 15 इज इक्वल टू 2p minus 100, and by solving you get p again. How much? तो ये 95 जो आ रहा है, पहले कितना आया हुआ है? तो वो 95 क्या वैल्यू किसके लिए प्राइस हो गया? सेलर के लिए. प्राइस ऑफ 95 विल बी द प्राइस फॉर सेलर. सो व्हाट विल बी द प्राइस फॉर बायर देन? सेलर के प्राइस में टैक्स ऐड कर दिया. सो 95 प्लस 15, 110. How much is quantity after tax? How much is quantity after tax? क्वांटिटी की वैल्यू टैक्स के बाद बताना. आसान तरीका देखो, कंफ्यूज अगर एरर नहीं करना है तो सिंपल तरीका बता रहा हूँ. क्वांटिटी आप उस फंक्शन से निकाल लो जो आपने चेंज नहीं किया है. देखो जो चेंज किया उसमें मिस्टेक हो सकता है, क्योंकि चेंज से पहले डिमांड फंक्शन ये था और चेंज के बाद डिमांड फंक्शन बदल गया है. तो मे भी आप मिस्टेक कर जाओ कि हमने कौन सा यूज़ कर लिया. तो कौन सा फंक्शन चेंज नहीं हुआ है? यू दिस 2p माइनस 100. बट अगर सप्लाई इक्वेशन लिख रहे हैं तो प्राइस कौन सी वैल्यू लेंगे? सेलर वाली लो. सप्लाई फंक्शन में सेलर का प्राइस और डिमांड फंक्शन में बाहर का प्राइस. तो हमने सप्लाई फंक्शन लिखा है, तो यहाँ प्राइस की जगह कौन सी वैल्यू पुट करें? सेलर वाला प्राइस 95. सो हियर राइट डाउन 95. 2 into 95 minus 100. 90. ठीक है. तो आफ्टर टैक्स हाउ मच क्वांटिटी सोल्ड? 90. बिफोर टैक्स हाउ मच क्वांटिटी? 100. So tax reduces quantity in the market, but on every unit there was a tax of how much? 15. तो गवर्नमेंट का ओवरऑल टैक्स रेवेन्यू कितना हुआ? एक यूनिट पे 15 रुपये का टैक्स था, और कितनी क्वांटिटी सेल हुई है? सो ऑन एवरी क्वांटिटी गवर्नमेंट विल गेट अ रेवेन्यू ऑफ 15 रुपीज. सो व्हाट विल बी द गवर्नमेंट टैक्स रेवेन्यू? गवर्नमेंट टैक्स रेवेन्यू व्हाट विल बी द फॉर्मूला? मतलब फॉर्मूले में आप क्या लिख दोगे? टैक्स रेवेन्यू इक्वल टू व्हाट? साइज ऑफ टैक्स मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी आफ्टर टैक्स. साइज ऑफ टैक्स 15, क्वांटिटी आफ्टर टैक्स 90. So 1350. Government revenue is 1350. On every unit there was a tax of 15, and after tax 90 unit has been sold. So this will be government revenue. ये कभी 6 नंबर का क्वेश्चन होता है, कभी 8 नंबर का क्वेश्चन होगा, बट यूजुअली ऑलमोस्ट इन एवरी ईयर यू विल बी गेटिंग दिस न्यूमेरिकल. इन द सेम न्यूमेरिकल देयर विल बी मोर पार्ट्स एडेड. इसी न्यूमेरिकल के अंदर आपके और फर्दर पार्ट सॉल्व होते जाएंगे, ऐड होते जाएंगे. यहाँ तक क्लियर है? एक क्वेश्चन आप चैप्टर नंबर 8 में क्वेश्चन नंबर 11 जो रीडिंग के
रीडिंग में। ये दो क्वेश्चन जो किए ये बेसिकली पास्ट पेपर से थे। एक बस आपको स्टेप में बता दे रहा हूँ, उसको आप खुद से ट्राई कर लेना। ये दोनों क्वेश्चन आप घर पे जाके दोबारा सॉल्व करो। कंसिडरिंग द टैक्स इज इम्पोज ऑन सेलर, आंसर सेम आएगा। आंसर में फ़र्क, इट डज नॉट मैटर वेदर टैक्स इज इम्पोज ऑन बायर और वेदर टैक्स इज इम्पोज ऑन सेलर, द आउटकम विल रिमेन सेम। सो चैप्टर नंबर 8 में क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन में लिख दे रहा हूँ, डिमांड इज 300 माइनस पी एंड सप्लाई इज इक्वल टू 2p एंड टैक्स साइज इज t पर यूनिट। मतलब कोई न्यूमेरिकल नंबर गिवन नहीं है, t की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। एडिशन, ये तो आई थिंक बुकलेट के अंदर जो क्वेश्चन होगा वो 6th वाला होगा, और चैप्टर के बैक के अंदर जो क्वेश्चन है वो सेम है। मैंने 4th, इस बुकलेट के अंदर 6th का भी क्वेश्चन है, 4th का भी क्वेश्चन है। न्यू एडिशन आएगी तो उसके क्वेश्चन भी होंगे। मान लो वही बायर, तो ये क्वेश्चन जो गिवन है 11th, इसके अंदर देखो पार्ट्स कितने पूछ रहे हैं क्वेश्चन। रीडिंग में जब आप क्वेश्चन देखिएगा तो इतने पार्ट्स हैं इसमें। ये सप्लाई और डिमांड फंक्शन गिवन है, सॉल्व फॉर इक्वल प्राइस एंड क्वांटिटी, फर्स्ट पार्ट बन जाएगा विदाउट टैक्स वाला। सपोज दैट टैक्स इज प्लेस्ड ऑन अ बायर सो दैट द न्यू डिमांड फंक्शन, उसने लिख दिया, वैसे आपको पता होना चाहिए कि डिमांड फंक्शन क्या लिखते हैं, 300 माइनस, तो उसने क्वेश्चन में लिख दिया सॉल्व फॉर न्यू इक्वलम, व्हाट हैपेंस टू द प्राइस पेड बाय सेलर एंड द प्राइस पेड बाय बायर एंड द क्वांटिटी सोल्ड। फिर टैक्स रेवेन्यू इज T इंटू क्यू, यूज योर आंसर इन पार्ट बी, जो यहाँ की वैल्यू आएगी टू सॉल्व फॉर इक्वलम। ग्राफ करना है रिलेशनशिप, जहाँ टैक्स की वैल्यू 0 to 300 वैरी कर रही है। ये डी पार्ट और ई पार्ट जब आप नेक्स्ट टॉपिक कर लेंगे डेड वेट लॉस, तब सॉल्व हो जाएगा। तो यू कैन सॉल्व फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। टी के टर्म में आंसर आएगा, मतलब कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं आएगी, द आंसर विल बी इन टर्म्स ऑफ टी। टी के टर्म में आंसर आ जाएगा। मैं इसको प्लॉट कर रहा हूँ यहाँ, आप कैलकुलेट करके नंबर बताना। आई एम प्लॉटिंग इट हियर। डिमांड फंक्शन विल बी 300 and 300, क्लियर। सप्लाई फंक्शन की प्लॉटिंग ओरिजिन से, ये नंबर बताओ पहले। इक्वेट कर दिया तो ये 100 और क्वांटिटी 200। टैक्स इम्पोज करने पे रिमेंबर देयर विल बी अ गैप, और ये गैप कितना बड़ा होना है, टी का बड़ा। दिस विल बी द प्राइस फॉर बायर, कैलकुलेट दैट। दिस विल बी द प्राइस फॉर सेलर, फाइंड इट, एंड दिस इज द क्वांटिटी आफ्टर टैक्स। ये 3 नंबर बताइए, टी के टर्म में आएगा, आ जाएगा। देखो कैलकुलेट करके बताओ, मैं बता रहा हूँ। 100 माइनस कुछ करोगे तो कम हो गया, 100 प्लस कुछ करोगे तो ज़्यादा हो गया। टी तो पॉजिटिव है ना। सर इधर टैक्स साइज में यूनिट ऑन बायर और यूनिट ऑन सेलर होता है, उसमें कुछ डिफरेंस आता है? नहीं, कोई डिफरेंस। ठीक है, आफ्टर टैक्स के लिए मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ। फर्स्ट तो इक्वेट कर दिया आपने बस। सो यू विल राइट फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट, न्यू डिमांड फंक्शन। सो डी इज इक्वल टू 300 माइनस पी प्लस टी। इक्वेट डिमांड एंड सप्लाई। 300 माइनस पी प्लस टी इज इक्वल टू 2p। यहाँ से सॉल्व करके p की वैल्यू बताइएगा। p इक्वल टू व्हाट, 300 अपॉन 3 ओवरऑल। सो ओवरऑल मतलब 100 माइनस टी बाई 3, ठीक है। तो ओरिजिनल वैल्यू वाज 100, नाउ द वैल्यू इज लेस देन 100, सो दिस इज प्राइस फॉर सेलर। यहाँ पे क्या लिखोगे अब, 100 माइनस टी बाई 3, ये प्राइस हो गया 100 माइनस टी बाई 3। सो व्हाट इज प्राइस फॉर बायर, सेलर के प्राइस में टैक्स साइज ऐड करना था, तो इट विल बी 100 माइनस टी बाई 3 प्लस टी,
So that will be equal to what? 100 plus 2t by 3. This becomes 100 minus plus 2t by 3. ये क्वांटिटी बता दी. How much is that quantity after tax? Quantity after tax. एसेट कैलकुलेट करने के लिए कौन सा फंक्शन यूज़ करो सेफ साइड में? जो चेंज नहीं किया हमने, तो चेंज हमने कौन सा नहीं कर रखा है? सो सप्लाई फंक्शन यू आर यूजिंग. सो व्हेन यू आर यूजिंग सप्लाई फंक्शन, देन इन प्लेस ऑफ पी विच प्राइस? सप्लाई फंक्शन लिख रखा है तो कौन सा प्राइस यूज़ करें? सेलर वाला यूज़ कीजिए. तो इट इज़ 2 into 100 minus t by 3. So that will be 200 minus 2t by 3. यहाँ जो वैल्यू आ रही है वो 200 minus 2t by 3. क्लियर है? और थर्ड पार्ट में क्या पूछा गया था? गवर्नमेंट टैक्स रेवेन्यू. सो व्हाट विल बी गवर्नमेंट टैक्स रेवेन्यू? गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू फॉर्मूला क्या है? साइज ऑफ टैक्स मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी. तो साइज ऑफ टैक्स इज टी एंड क्वांटिटी आफ्टर टैक्स इज दिस नंबर. साइज ऑफ टैक्स इज टी, quantity after tax is 200 minus 2t by 3. So this becomes 200t minus 2t square by 3. ठीक है? 200t minus 2t square by 3. ये पूरा एरिया हो गया वो गवर्नमेंट रेवेन्यू. 200t minus 2t square by 3. 200t minus 2t square by 3 is गवर्नमेंट रेवेन्यू. आपसे प्लॉट करने को कहा गया था कि अगर मैं टैक्स का साइज यहाँ लिख दूँ और गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू वर्टिकल एक्सिस पे, तो उसकी प्लॉटिंग क्या होगी? बिटवीन 0 to 300. ये कह रहे थे. 0 करने पे तो 0 ही आ जाएगा, और अगर 300 पुट कर ले यहाँ तो पुट करके देख लीजिए. 300 अगर यहाँ पर लिखा टी और यहाँ भी 300 देख दिया, ज़ीरो. ठीक कह रहे हो? 0 पे भी 0 होगा, 300 पे भी 0 होगा. इट विल बी बेसिकली इन्वर्टेड U. Remember, as tax size will increase, initially up to a point revenue will rise, but after a maximum it will start declining. Remember, ये जो डायग्राम आपने भी ड्रॉ किया है, इसमें अगर टैक्स साइज T है तो ये वाला एरिया रेवेन्यू का एरिया होगा. As you increase tax size, area of revenue will be this. If you continue to increase this, so as the tax size will continue to increase, what is the effect on quantity? टैक्स साइज आप बड़ा करते जाओगे तो एवरी स्टेप में क्वांटिटी क्या होती जाएगी, और अगर क्वांटिटी 0 हो जाए तो रेवेन्यू भी 0 हो जाएगा. इफ नो वन इज बाइंग द क्वांटिटी आफ्टर टैक्स, देन रेवेन्यू विल आल्सो बी 0. दिस इन्वर्टेड यू शेप कर्व इज कॉल्ड Laffer curve. So what does Laffer curve explain? In fact, relation between what you have written on the axis? Relation between tax revenue and tax size. रिमेंबर अभी इस क्लास के अंदर आपने चैप्टर नंबर 5 का कंसेप्ट भी किया, चैप्टर नंबर 6 का कंसेप्ट भी किया और चैप्टर नंबर 8 भी किया. नॉट कंप्लीट चैप्टर भी आप मतलब एक कंसेप्ट है जिसकी कंटिन्यूटी आपको 5 में भी मिलेगी, 6 के अंदर भी मिलेगी और 8 में भी. जो प्रॉब्लम ये कर रहे थे ये चैप्टर नंबर 8 का प्रॉब्लम है. कंसेप्ट ऑफ इंसिडेंस ऑफ टैक्सेस इन चैप्टर नंबर 6 एंड द कंसेप्ट ऑफ वेलोसिटी वाज इन चैप्टर नंबर 5, बट यू हैव टू कनेक्ट इट. ठीक है, डिफरेंट फॉर्म में कनेक्ट करना. तो दिस टॉपिक विल कंटिन्यू
रिमेंबर इन दी ऑनलाइन क्लासेस ऑल मटेरियल विल बी अपलोडेड, मतलब पीडीएफ में आपको यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 के जो कंटेंट होंगे वो अपलोडेड रहेंगे। लाइक यूनिट नंबर 2 ऑल बेसिक, सो फार यू व्हाट यू हैव रिटन इज ओके, जो क्लास के अंदर आप लिख रहे हैं वो ठीक है। इनकेस अगर आप वो चीज़ें नहीं लिख रहे हैं तो रिमेंबर इन द पीडीएफ फॉर्मेट ऑल टॉपिक एंड द प्रॉब्लम विल ऑल्सो बी अपलोडेड, ठीक है, उसके अंदर वो प्रॉब्लम भी सॉल्व रहेंगे। तो क्लास बेसिकली आपको अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए ज़्यादा यूज़ करनी है। वैसे यूनिट 2 का सिमिलरली फॉर यूनिट नंबर 3 हाउस होल्ड, फॉर यूनिट नंबर 4 and 5 मोनोपोली, so content will also be uploaded there on the website, and the class will be basically content introductory, micro के अंदर ज़्यादा नहीं होता, so it will be maximum we can say 20 to 24 classes के अंदर ये ओवर हो जाता है, like it is not a huge content। सेम 3 के अंदर जाने पे माइक्रो मैक्रो के अंदर कंटेंट इट विल टेक मोर टाइम, बट इट डज नॉट मीन कि वो कंटेंट ईजिली हो रहा है, बट एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होंगे उसमें, उसका ध्यान रखना। सो आई एम सेइंग 20 to 24 फॉर द पास्ट ईयर सिलेबस, जो न्यू एडेड होगा फॉर दैट न्यू एडिशन देयर विल बी सम एक्स्ट्रा क्लासेस। जो 2 टॉपिक मैंने आपको कहा कि ये नए कंटेंट होंगे, सो यू हैव टू बी केयरफुल इन द प्रीवियस ईयर नोट्स, दिस टॉपिक इज बेसिकली न्यू, so that new topic will be covered as well, ठीक है। तो जो क्लास माइक्रो की करेगा या रखेगा, ये क्लास आपको ऑनलाइन पे भी एक्सेस है, जिस दिन आपकी क्लास अगर छूटती है तो उस दिन आप ऑनलाइन वाली जो क्लास होगी वो देख लीजिए, ठीक है। सो यू मस्ट हैव दैट ऑनलाइन एक्सेस, ठीक है। विल कंटिन्यू। संडे होती है ना, इसकी क्लासेस संडे होती है ना। सर क्लासेस ये संडे ही रहेगी। संडे को नहीं। सर 300 डेज लिए आपने यहाँ पर, 300 डेज लिए टेक्स्ट साइज में